Yes. So we were discussing rotational symmetry. Very good afternoon to all of you. Rotational symmetry definition we did. Chलिए, let us discuss the rotational symmetry of some figures. Rotational symmetry of some figures. First, I am going to discuss four square. Four-sided figure, square. See, you see, this is a square, right? I'm keeping it on the board. Now, center of rotation जो है इसका point of intersection of diagonals, जहां पे इसके diagonals bisect करते हैं. I should make the diagonals as well. Just a minute, wait. Diagonals भी बना के फिर दिखाती हूँ. ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है. इसकी वर्टिसेस मैंने लिखी हुई है ABCD. This is the center of rotation, that is point of intersection of its diagonal. And 90 डिग्री के diagonals के bisect करते हैं, तो 90 डिग्री के थ्रू हम इसको रोटेट करेंगे. Firstly, when I am rotating this square on the 90 degree, I am getting this A point to be there. A point आपके पास यहाँ पे. I am making it side by side. Earlier, the square was like this, A, B, C, D. First, after first rotation by the point of intersection of the diagonal, we are getting the second figure where A is shifting like this, as you can see. This is the first figure of rotation. A rotated to that direction. Then again, when I will rotate it to 90 degree, A will come here. So the second figure is right. This is the second figure of rotation. Same होनी चाहिए square की length हर figure में. By chance मेरे से थोड़ा different. And now again I am rotating 90 degree. A comes here. This is the third figure. And when again I am rotating it to 90 degree, A comes back to its original position. This is the fourth figure where A comes back to its original position. So in square we see okay, this mean sure. So in square we see that point of rotation is the point of intersection of its diagonal, and angle of rotation, angle इनके बीच में 90 डिग्री का होता है diagonals के बीच में. तो 90 डिग्री के थ्रू जब हमने स्क्वायर को रोटेट किया, उसने चार पोजीशन अपनी ली, ए बी, ए फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया, और चौथी पोजीशन में जाके ए इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, rotating this through 90 degree. Firstly, A coming here, then A is to the downward direction, then A comes here, and in the fourth flip, A comes back to its original position. You can see the figures, first figure, second figure A की position, third figure, फोर्थ की. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसको रोटेट किया किसी भी शेप में, चाहे वो A यहाँ पे है, चाहे मेरे को एक सेम साइज का बनाने दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, चाहे A आपका यहाँ पे है, थर्ड में A यहाँ पे, फोर्थ में. अब मुझे ये बताओ, किसी भी फिगर में A की पोजीशन को छोड़ के, अगर हम A की पोजीशन को कंसीडर ना करें, A की पोजीशन को छोड़ के आपको किसी भी फिगर में इस स्क्वायर की यू कैन से शेप में कोई फर्क नजर आया? ऐसा तो नहीं लगा कि स्क्वायर सर्कल बन गया रोटेशन करते करते? ऐसा तो नहीं लगा कि स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया? यानी कि हर एक रोटेशन में
फिगर की जो शेप और साइज है वो सेम रहा। हमने क्या बोला था, व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री? इफ द फिगर रिमेन्स द सेम इन शेप और साइज आफ्टर रोटेटिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एंगल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, then that figure is said to have rotational symmetry. इसका मतलब स्क्वायर की रोटेशन ऑफ सिमेट्री हमारे पास है और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 90 डिग्री। इस फिगर में पूरी, और हमें अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आपने 360 की टर्न लेके आप रुक क्यों गए, दोबारा क्यों नहीं आपने इसको रोटेट किया? और क्योंकि 4 टर्न लेने के बाद ये जो चीज है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। और वैसे भी फुल टर्न 360 डिग्री की होती है, हम 360 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर बाद में वही कुछ रिपीट होना शुरू हो जाता है। 360 डिग्री की फुल टर्न होगी। तो इस फुल टर्न को करते करते इस फिगर ने 4 बार अपना ए का अपनी पोजीशन जरूर चेंज की, बट इसकी शेप जो है वो सेम रही। तो स्क्वायर इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री with angle of rotation 90 degree and with center of with you can say point of rotation, point of diagonals लिख लो। स्क्वायर के केस में एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री, सेंटर ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, पॉइंट ऑफ intersection of the diagonals। एंड आपको याद होगा कल मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। This is 360, angle of rotation 90, so square का order of rotation हो गया 4। Order of rotational symmetry of square is 4। वैसे भी इस फिगर ने 4 बार रोटेशन पे किसी बार भी अपनी जो है शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं की। 90 डिग्री पे रोटेट करने पर ही वो अपनी सेम पोजीशन पे रही, चारों बार सेम रही। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज 4। अब ऐसे कैसे पता चलता है कि 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है? क्योंकि जब हम यहां से रोटेट कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री हुआ। और पहले ही 90 डिग्री पे रोटेट करने पर इसकी शेप सेम रही, तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है। तो हमने एंगल ऑफ रोटेशन जब 360 के नीचे एंगल ऑफ रोटेशन के साथ डिवाइड किया, यू गेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, दैट इज 4। अब आपको क्या क्या याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन कैसे आ सकता है या फिर आपने कैसे इसको प्रेजेंट करना है। इट कैन बी आस्क्ड, मेक ए स्क्वायर एंड डिस्कस इट्स रोटेशनल सिमेट्री। तो यू हैव टू मेक ऑल दीज 4 फिगर्स, एक ही पोजीशन चेंज करते करते चारों फिगर्स बनाओगे। इट कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्क्वायर? You will write 90 degree. It can be asked, what is the center of rotation? You will say point of intersection of the diagonals. What is the order of rotation? You will write this formula 360 over angle of rotation. You will get order of rotation to be 4. Is it clear? Clear है सबको इतनी बात? ये हुई स्क्वायर की हमारी रोटेशनल सिमेट्री। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री पर। पहली बात तो ये कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे मीट नहीं करते, स्क्वायर के करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं। चलो एनी हाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड फिगर, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल। This is the original figure. See, this is rectangle having 4 vertices A, B, C, D.
and this is the point of intersection of the diagonal, from where with taking this to be the center of rotation, we will rotate this rectangle, right? When I'm rotating this rectangle first time through 90 degree, it will get this position. Right? Again through 90 degree, A is coming here. Second figure. Again through 90 degree, A is coming here. Again through 90 degree, figure comes back to its original position. 360 की पूरी टर्न हो गई. अब मुझे आप ये बताओ, जब हमने इसको रोटेट किया, हमारे पास 4 you can say the figures we are obtaining. अगर मैंने 90 डिग्री के थ्रू इसको रोटेट किया, फिगर की शेप जो है वो बदल गई. इंस्टेड ऑफ हैविंग वर्टिकल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, इट स्टैंड इन द वर्टिकल पोजीशन. फिर जब 90 से किया, पहला 90 दूसरा 90 मिला के 180 डिग्री हुआ ना. दैट मीन्स जब पूरी 180 डिग्री की फुल टर्न हुई, एक टर्न हुई, तब इस रेक्टेंगल ने जाके अपनी रियल पोजीशन वापस हासिल की. इसका मतलब इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा? 80 डिग्री होगा. नो डाउट हमने इसको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट किया, बारी बारी से एक ही पोजीशन चेंज की, बट इस क्वार्टर टर्न में 90, देन 180, देन 270, देन 360, इन 4 टर्न्स में कितनी बार इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब वापस आया अपनी पोजीशन पे? 2 बार आया. तो वहां से भी पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है. बट कितने डिग्री एंगल पे, पूरे फुल एंगल पे उसने अपने आप में दोबारा अपनी शेप हासिल की? दैट इज 180 डिग्री एंगल. सो इन केस ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रोटेशन, this is 180 degree. Point of rotation, point of intersection of the diagonal. Point of rotation is point of intersection of the diagonals. Point of intersection of the diagonals. And order of rotation, apply the formula for the order of rotation. 360 divided by angle of rotation. That means 360 upon 180, and that will give you 2. So in case of rectangle, your order of rotation, it comes out to be 2. Point of rotation is same as that of the square, that is point of intersection of the diagonal, and the angle of rotation is 180 instead of 90. स्क्वायर ने 90 डिग्री पे एक बार में ही रोटेट होके अपनी शेप जो है वही रखी. इसने 180 में रोटेट होने के बाद अपनी शेप सेम करी है, इसलिए इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा? 180 डिग्री. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस. अब आओ जरा नेक्स्ट में, जस्ट अ मिनट. The next is third equilateral triangle. Here, the center of rotation is going to be the point of intersection of the medians.
इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ये जब यहाँ पे मीडियन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया तो ये पूरा 360 एंगल 3 हिस्सों में बट गया, 3 इक्वल पार्ट्स, 120 ईच। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 120 डिग्री होगा। जैसे ही आपने 120 डिग्री के थ्रू रोटेट किया, आपका ये ट्राइंगल इस तरह से ए यहाँ पे आ गया। इस चीज को मत देखना, सिर्फ जहां मैंने डार्क लाइन लगाई है उन्हीं को देखना और इस लाइन को देखना। सो आपका जो ए पॉइंट है आफ्टर द फर्स्ट रोटेशन इट कम्स हियर। Second, again I am rotating it through the, you can say 120 degree. A will come at bottom, A इधर चला जाएगा, and when I will again rotate it through 120 degree, A will come back to its original position. So you know, यहाँ पे एक टर्न 120 डिग्री के थ्रू हुई है, and you might have realized that only the position of A is differ, which is telling us that जब हमने तब तक रोटेशन करनी है जब तक A अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ जाता। But during this rotation through 120 degree, in the first turn only, the triangle, you can say, is not changing its shape. So it means its angle of rotation is 120 degree, right? चलिए देखें जरा। So first of all, angle of rotation. This is the point of intersection of median. Median की definition हमने की थी triangles and its property में, medians and sorry, angle of, गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखो point of rotation. Point of rotation is point of intersection of the median, and angle of rotation, this is 120 degree, and order of rotation, this is 360 over angle of rotation, and that is 3. Equilateral triangles order of rotation is 3. चलिए, yes, Saksham Smarth, what do you want to ask? Yes, ma'am, हमें एंगल ऑफ रोटेशन पता कैसे चलता है? Yes, एंगल ऑफ रोटेशन पता कैसे चलता है? जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मीडियन लिया, हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। सेंटर ऑफ रोटेशन अगर मीडियन है तो ये जो एंगल है, मीडियन ने इस एंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टोटल ये 360 होता है। 360 को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो ईच एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, हमें पॉइंट ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए, वहां से एंगल ऑफ रोटेशन आपको पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। मैं दोनों इकट्ठे ही डिस्कस करूंगी, सीजर के साथ ही इसको जो है ऑलमोस्ट सी। सो अगर हम देखें इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, देखो बेटे ये 90 डिग्री
अगर करते हैं तो ये जो है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, ये जो लाइंस हैं, यहाँ पे ये एंगल्स 180 डिग्री बनता है। तो हम इसको सीधा 180 डिग्री की तरफ रोटेट करेंगे, देन जो ए है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। कैसे? वो जंप होंगे ए के 180 डिग्री के थ्रू ए के जो है ए बी सी डी दो इकट्ठे जंप होंगे, ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे 180 डिग्री के थ्रू। और उसके बाद फिर से 180 डिग्री के थ्रू करके दो जंप इकट्ठे, फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये फर्स्ट 180 डिग्री की पोजीशन एंड दो जंप इकट्ठे होंगे इसकी और ये कम बैकवर्ड्स पोजीशन। सेम इज इन केस ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन दोनों का सेम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, then angle of rotation 180 degree, then order of rotation this is an total angle over angle of rotation, that is 2। दोनों का मैंने जो है वो साइड बाय साइड आपके सामने डिस्कस किया। यानी कि अगर वो 90, 180, 270, 360 टर्न लेते लेते ये जो, फिर से बच्चे शायद माइक के लिए कह रहे हैं, सॉरी, तो ऐसे टर्न लेते लेते अगर फिगर अपनी सेम शेप में वापस कहीं आती है, जैसे ये 180 पे करने पे आई, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होएगी। बट अगर 360 की टर्न लेते लेते कहीं पे भी जो है वो अपनी वापस पोजीशन में नहीं आती, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। 360 पे रोटेट करने पे तो सारी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती हैं। तो अगर 360 डिग्री मतलब एक टर्न पे फिगर अपनी पोजीशन पे वापस आती है, तो उसको हम उसका ऑर्डर जरूर निकल सकता है 360 ओवर 360 ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1। बट जिसका मैंने आपको लिखवाया था, जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होएगा, उसकी रोटेशनल सिमेट्री हम नहीं मानेंगे। To have rotational symmetry, order of rotation should be 2 or more than 2. That means it should be more than 1, right? चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब मैं सिंपल फिगर्स की ऐसे ही डिस्कस करती जाऊंगी, आप खुद उसको रोटेट करके देखना, खुद अपने आप करके देखना। हाँ जी अक्षरा। मैम एक बार रिपीट करवा दो। किसका? मैम यही पैरेललोग्राम एक बार रिपीट कर दो। नहीं समझ नहीं आया आपको? व्हाट इज द रीजन? मैम ये समझ नहीं आया, वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना। चलो ठीक है, देखो बेटे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस पैरेललोग्राम रोम्बस वन ऑफ द सेम, इसको जब हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये ए जो है बिल्कुल ही पोजीशन जो है इसकी जो शेप है वो सेम नहीं आती। 180 पे रोटेट करने पे पैरेललोग्राम अपनी पोजीशन पे वापस आता है, ए यहाँ आ गया। और फिर से जब हम 90 प्लस 180 रोटेट करेंगे, 90 180 रोटेट करेंगे, it a will come back to its original point. So there are the two figures in which the rotation will be made by 180 degree angle of rotation 180 degree, and point of intersection of diagonals will be the point of rotation, and order will be 360 over 180, that is 2. Akshara, is it okay? Akshara, is it clear? Okay, chaliye. So this was the fourth figure. Now I'm starting with the fifth one. I'm now simply writing, and you will make the figure yourself and rotate it, and you will get match whatever I'm telling you. Now I'm telling regular pentagon. गलत हुआ कुछ,
5 lines of symmetry it is having. Line joining the vertex to the midpoint of the opposite sides. So we know that this pentagon, it is having 5 lines of symmetry, right? Pentagon is having 5 lines of symmetry, and total angle here it is just a minute, wait. 5 lines of symmetry के through अगर हम angle, see, when we are talking about regular hexagon and its a center, so as it is having 5 sides, so इसको rotate करने के लिए center के through जो angle of rotation है पूरा 360 डिग्री है, हम उसको 5 equal parts में divide कर देंगे angle को. This will be 72 degree. So angle of rotation of regular hexagon is 72 degree and center point of rotation. So we will find order of rotation. Center से पकड़ के इसको rotate करना है. Order of rotation is equal to 360 degree over angle of rotation. That means 5. So order of rotation of regular pentagon, this is 5. We will do it for the different other figures also. So do send your homework if you want to get marks for your internal assessment.